Hello friends, hello students, how are you? Myself Meenakshi Sinha from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Competitive questions. As always, मैं एक न एक नया क्वेश्चंस लेके आती हूँ IQ बढ़ाने के लिए, मैथ्स लवर के लिए, मैथ्स से प्यार करने वालों के लिए, अपनी मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए. वेरी गुड क्वेश्चंस. क्वेश्चन में दिखाई कुछ नहीं दे रहा है. दिस इज द क्वार्टर पोर्शन ऑफ द सर्कल OBA. OABA. This is the center. Inside this एक और सेमी सर्कल है on the radius of the quarter circle. Quarter circle के radius पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है as a diameter. OB as a diameter. That it means OB is the diameter of the semicircle while the radius of the quarter circle. ठीक है. एक A से टेंजेंट ड्रॉ की है D पर जो इसकी सर्कमफ्रेंस को C पर काटती है. हमें DC निकालना है. दिस डिस्टेंस DC इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है. कुछ भी नहीं दे रखा, ये सब दे रखा है. डिस्टेंस P है, डिस्टेंस P है. इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ के एक 3 है, यहाँ के यहाँ एक 3 है. तो OP क्या है? OP इज द रेडियस. इट मीन्स इनडायरेक्टली इसने रेडियस, स्मॉल रेडियस इज इक्वल टू 3 दे रखी, विच इज ऑफ सेमी सर्कल. वी आर गिवन, हमें ये दे रखा है. It means capital R, if it is equal to capital R, this is R. This will be equal to 6. Equal to 2 times small r, that is 6 here. ये indirectly आपको दे रखा है. Find करना है DC. DC को निकालना है. We have to find the value of DC. What we can do? This is also a tangent point. Tangent on this semi circle. And this is also tangent. यानी AO and AD both are tangent on circle ODC, semicircle. ODC पे दोनों टेंजेंट है. इट मीन्स इसका मतलब हो गया OA is equal to 6 is equal to OA is 6 is equal to AD. AD also is equal to 6. This is will be equal to this tangent up to this point. Clear? Very nice. ये भी पता चल गई हमें. एक और चीज पता चल रही है, देखिए. This is also 6. If we join this point, this is also 6. This is 6 and also OC is equal to 6 because they all are. This is because of the tangent and this is equal to 6 also because this is the capital radius R, capital R. तीन चीजें, यानी OA is equal to 6, OC is equal to 6 and OB is equal to 6. We have to find DC. DC निकालना है. क्या करें? इसको ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेमी सर्कल. इसको ज्वाइन करते हैं. ये लीजिए. ओके, ये ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करने से दिस विल बी द एंगल थीटा एंड दिस विल आल्सो इक्वल टू थीटा. बिकॉज क्यों होगा? बिकॉज दिस विल बी द tangent. OPA and PDA ये इस तरह का हो गया. These are the, एक सर्कल है. This is the circle. This is the point D and this is the O. This is tangent. This is R.
एंड दिस विल बी इक्वल टू r. ये 6 हो गया, जो 6 है तो ये भी, इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो इक्वल टू 6. क्लियर? ओके. This is 3, this is 3. This will be the angle bisector. Okay, ठीक है. Now in triangle OAP, P is the midpoint of this point. This is P. This is P. OAP. OA is equal to 6. Angle O is equal to 90 degree and OP is equal to 3. OP is equal to 3. Okay. Then tangent theta can be obtained. Tan of theta. This can be to obtain tangent theta. For this angle theta, this is perpendicular. This is base. इस angle के लिए. This is perpendicular. This is base. Can be written as OP upon OA. That is 3 by. This is 6. R is equal to 6. Okay. Clear. That is 1 by 2. Tangent theta is equal to 1 by 2. Okay. In triangle OAC, this is OA, which is 6, OA, which is 6, C, this is 6 plus this portion, in which OC, this is also 6, OC is equal to 6 and AC is not known to us. We have to find in between the point D है जो हमें find है. तो suppose इसको हमने लिख दिया X, जिसमें ये वाला पोर्शन 6 है, D ये वाला पोर्शन 6 है. Okay, this whole length is equal to X. It means we are putting AC is equal to X, which is actually equal to 6 plus DC. This is to be determined. AC is equal to 6 plus DC. Okay. This angle is 2 theta. This angle is 2 theta. This angle is 2 theta in this triangle. इसको देख के एक बात याद आती है. 3 arms are known to us. 3 arms हमें पता है. Cos of 2 theta का फॉर्मूला लग सकता है. क्या होता है? Cos of 2 theta. Cos of theta जिन बिटवीन दो एंगल के बीच में जो एंगल होता है, ऐसे अगर एक एंगल x लिखा है, मान ली अल्फा है, ये a है, ये b है, ये c है, तो cos of alpha this can be written as a square plus c square minus b square upon 2 times ac. ये एक फॉर्मूला है. जिन दो आर्म्स ट्रायंगल के बीच में कोई एंगल है, इन बिटवीन टू आर्म्स, उनके बीच का cos ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है इस जिन दोनों आर्म्स के बीच में अल्फा है उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस माइनस फ्रंट वाला बी स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दीज का ट्वाइस. दिस इज द फॉर्मूला. ये आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर से नोट कर लीजिए. जब कभी किसी भी ट्रायंगल में बीच में दो एंगल है, एंगल्स ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें जो बीच का एंगल है उसका कॉस जो होता है वो दोनों आर्म्स की लंबाई के स्क्वायर का एडिशन माइनस बची हुई आर्म्स एंगल के सामने वाली आर्म्स का स्क्वायर माइनस अपॉन 2 AC होता है.
तो यहाँ से कॉज ऑफ सिमिलर इज द केस विद अस। हमारे केस में ये कॉज ऑफ 2 अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉज ऑफ 2 अल्फा, cos of 2 alpha 2 theta, this can be written as 6 square plus x square minus 6 square upon 2 into 6 into 6, because this side is also 6। क्लियर हुई बात? नहीं, फिर से देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ए बी सी कोई ट्रायंगल अगर होता है, दो आर्म्स अगर उसके बीच में एक एंगल अल्फा है, उसका ये एंगल अगर अल्फा है तो इसका कॉस जिन दोनों आर्म्स के बीच में एंगल है उनका स्क्वायर का प्रोडक्ट, स्क्वायर का एडिशन माइनस सामने वाली जो भुजा जिसके बीच में आर्म एंगल नहीं है माइनस उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AC होता है। तो हमारे केस में ये इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, O पॉइंट है, A पॉइंट है, इसके बीच में एक एंगल थीटा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट C इधर है, C है, ये वाली दूरी 6 है, OA 6 है, ये OC भी 6 है, बिकॉज ये इस बड़े वाले उसकी सर्कमफ्रेंस पे है, C है, ये भी 6 है, OC भी, ये वाली लंबाई भी 6 है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा, 2 थीटा हो गया। और ये वाली पूरी लंबाई हमने x मान ली, AC हमने x मान ली। तो इसका मतलब ये AC इज इक्वल टू जो कि 6 प्लस यहाँ पे D पॉइंट है, तो 6 प्लस DC होगा, ओके। तो इस हिसाब से एज पर दिस फॉर्मूला cos of 2a can be written as 2 थीटा, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है? 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्यों ये एंगल इन दोनों के बीच में ये फ्रंट वाली है, माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू एक्स, ये लिखा जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 12x, दैट इज x बाई 2 और x बाई 12, एक x कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्लियर। अब cos 2 थीटा निकल गया और हमारा टेंजेंट से भी हम cos 2 थीटा का एक रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री को याद कीजिए। वी कैन राइट cos ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan के रूप में। ट्रिग्नोमेट्री ध्यान कीजिए, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। तो 2 थीटा इज एज पर आवर कंडीशन इज इक्वल टू x by 2, x by 12, okay, and this is also equal to 1 minus tan थीटा की वैल्यू इसमें रख दीजिए 1/2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, it is 1/3, 1 minus 1/2, 4 minus 1 that is 3/4 आएगा अपॉन 4 plus 1 is 5/4, that is 3/5, 3/5, it means x upon 12 is equal to 3/5, it means x is equal to हो जाएगा 3/5 into 12, 3 हाँ
3 into 12 upon 5, ठीक हो, that is 36 upon 5. 36 upon 5 means this will be equal to 7.2. 7.2, this is the full x AC. This is the full, we have to find value of DC. This is AC is equal to AC. Hence DC will be equal to AC minus 6. AC minus AD. DC is equal to AC minus AD. AC minus AD. AC is equal to 7.2 and AD is equal to 6. That is 7.2 minus 6, that is 1.2 cm. This is the answer. DC is equal to, answer is DC is equal to 1.2 cm. 1.2 cm. ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री ना भूलें, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ज्योमेट्री ना भूलें। इसमें ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैथ्स का तो हाई कैलकुलेशन। क्या किया हमने, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूं। एक हमें क्वार्टर सर्कल दे रखा था, उसके अंदर एक सेमी सर्कल था जो टेंजेंट था इधर और इस पर। इसका डायमीटर दे रखा था, इसका सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का डायमीटर इज द रेडियस ऑफ द क्वार्टर सर्कल, ठीक है। ये 3 + 3 6 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 3 हो गया, इसका रेडियस है। इस पॉइंट से अगर सपोज ये जो इसको टेंजेंट करा यहाँ मिला देंगे तो ये वाले भी इसकी बड़े वाले आर्क की रेडियस है, तो ये पूरी लंबाई भी OC भी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। OC भी 6 सेंटीमीटर होगी, OA भी 6 सेंटीमीटर होगी। और ये यहाँ पे टेंजेंट है और इस पे भी टेंजेंट है। देखिए इस आर्क के ऊपर ये जो सेमी सर्कल है इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है ऊपर और डी पर, तो ये वाली AD की लंबाई भी 6 हो गई, ठीक है। अब हमने सबसे पहले टेंजेंट थीटा निकाला। टेंजेंट थीटा इस वाले ट्रायंगल से AOP से, तो फॉर दिस एंगल थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। ये चूंकि इसको अगर इससे मिलाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा इसका, दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, क्योंकि ये वाली थ्योरी होती है, आपको पता है। ये देखिए जब कोई इस तरह से टेंजेंट करते हैं, किसी पॉइंट पे जब टेंजेंट करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है और इनका जो मिड पॉइंट इसको सेंटर से बुलाते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और लेंथ भी आपस में बराबर होती है। तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमें निकालनी थी DC। DC मीन्स इसमें से अगर 6 घटा दें तो मेन एम होगा हमारा AC निकालना। AC को निकाल के उसमें DC घटा देंगे तो AD घटा देंगे, तो जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो हमारी DC आ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, बिकॉज ये एंगल इस एंगल के बराबर टेंजेंट थीटा करके थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/2 निकाली। उसके अलावा फिर हमें एक और बात ध्यान में आई, ये कोई ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल ABC होता है, उसके बीच में कोई एंगल होता है, जिन दो भुजाओं के बीच में दो आर्म में कोई एंगल होता है, उसका कॉस बराबर होता है जो संलग्न भुजाएं हैं जिनके बीच में एंगल है, जो ज्वाइनिंग arms of the triangle, the angle is in between the joining arms, then under this condition the square cos alpha of this angle will be equal to square of the joining, addition of the square of the joining arm minus remaining arm, square of the remaining arm upon 2 into multiplication of joining arms. A square plus C square minus B square upon 2AB, where angle alpha is in between A and C. In a triangle, if an angle is in between two arms A and C, then
cos of that angle can be written as a square plus c square minus b square upon 2ac. This is the formula. With the help of this formula, we are applying the same condition of this triangle. जैसे देखिए ये OAC, OA में ये वाली आर्म पता है हमें जो 6 है, ये भी पता है जो 6 है, ये हमें नहीं पता लेकिन इसका इतना पोर्शन पता है, तो हमने पूरा इसको x माना, AC को x माना और फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया कि this cos of 2 alpha, cos of this 2 alpha or 2 theta, theta plus theta 2 theta will be equal to this square, it will be 6 square plus this square, that is x square. यहां से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी हमने AC इज इक्वल टू एक्स मानी है, AC ये वाली चीज दूरी x मानी है, तो 6 स्क्वायर माइनस ये वाली आर्म 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू एक्स, इससे x अपॉन 2 12 आया, x cos 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2 12 कैलकुलेट होके आया. Now cos 2 alpha can also be, as per the trigonometry, can be written as cos of 2 alpha can be 2 theta can be written as 1 minus tan square theta plus 1 upon tan square theta. तो उस केस में tan theta is already can be obtained from this triangle. This triangle. This is the, for this angle tangent theta. This is base and this is perpendicular. Perpendicular upon base is equal to 3 upon 6 is equal to 1 by 2 tangent theta, and hence x by 2 is equal to x by 2 is equal to 5 by 4, x by 12 is equal to 5 by 4, then x is equal to 7.2 centimeter. X was what? AC. AC was 7.2. It means DC will be 7.2 minus 6, that is 1.2 centimeter. Okay? मजा आया? एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, डोंट हेजिटेट. ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय.